أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. یہ ہماری ہوگی آیت 30. ٹھیک ہے، اب واپس چلتی ہوں 28 پہ. کیفا، کیفا دیکھیں، کاف زبر یا کئی، کئی سسٹر جو ہے نا اس کو غلطی کیا کرتی ہیں، اردو کی طرح کیفا پڑھ دیتی، کیفا. عربک میں یہ جو ہم ایسے بولتے ہیں نا کیفا، حذیفہ، یہ ہے ہی نہیں ہے عربک میں، ہے ہی حذیفہ. کیفا اس کو کیا میں آپ پڑھ چکی ہیں، یہ لین، کاف زبر یا کئی، کئی اس کو لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے موڑنا. تو جب بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو جو ہے یا ساکن کیا کرے گا، اپنے پچھلے زبر والے حرف کو نرمی سے موڑ دے گا. اب دیکھیں یہاں پہ یا ساکن ہے نا، کیفا، یا کے اوپر سکون ہے نا تو یا ساکن ہے، اس نے اپنے پچھلے والے کاف زبر کو کیا کیا، موڑ دیا. کئی، کئی کاف مڑ گیا اپنی جگہ سے. کیفا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے اس کو کیفا نہیں بولنا، کیفا. تکفرون، تک فرون، رو را پیشوا رو، واو مدہ آ گیا تو 2 حرکہ جتنا کھینچ دیا. لیکن اس کو کھینچتے کھینچتے نون زبر نا کو نہیں کھینچتے نا، ایسے نہیں پڑھنا تک فرونا، نہیں، تک فرون، نہ کو لمبا نہیں کرنا. باللہ، باللہ میں دیکھیں میں نے اللہ کے نام کے لام کو ہیوی نہیں کیا، جلالہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے جو حرف ہے با، اس کے نیچے زیر ہے، اور آپ سب جانتی ہیں کہ اللہ کے نام سے پہلے حرف پر اگر زبر یا پیش ہوگی تو اللہ کے نام کا لام جلالہ ہوگا، ہیوی پڑا جائے گا. لیکن اگر اللہ کے نام سے پہلے جو حرف ہے وہ زیر ہوگا تو اللہ کے نام کا جو لام ہے، تشدید والا لام، یہ دیکھیں اس کے اوپر کھڑا زبر ہے اللہ کے نام پہ، وہ باریک رہے گا. باللہ، ٹھیک ہے. وَكُنْتُمْ، اب دیکھیں یہاں پہ ہماری اگزامپل آ گئی نا، یہ والی اخفا کی. کن تم میں دیکھیں نون ساکن ہے، کن کاف پیش نون، کن نون ساکن، اور اس کے بعد فوری بعد آ گیا تا. کن تم نون ساکن کے بعد آ رہا ہے اس میں تا. تو جب تا آ گیا تو تا آپ سب جانتی ہیں، ابھی ہم نے پڑھے 15 حروف اخفا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تا کیا تا حروف اخفا میں سے ہے، ٹھیک ہے. جب تا حروف اخفا میں سے ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لیں گے اور تھوڑی دیر اس پہ روک لیں گے، باریک ہو جائے گا اور آپ کی زبان جو ہے وہ کہیں ٹچ نہیں ہوگی. کن تم، ٹھیک ہے، کن تم نارملی ہم پڑھتے ہیں کن تم، لیکن اب ہمیں رول آ گیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز جو ہے ناک میں چھپ جائے گی. کن تم امواتا فاحیاکم، اب دیکھیں امواتا، تا کے اوپر 2 زبر آ گیا، تنوین، تنوین پہ بھی ہم نے وہی رول دیکھنا ہے. اب تا 2 زبر کے بعد تن، اس کے بعد اب دیکھیں فا آ گیا فوری طور پہ،
अब आप ये देख रही होंगी कि ता दो जबर के बाद साथों अलिफ लगा हुआ है ता के साथ, है ना। और आप सब ये भी जानती हैं, इसका जवाब ये है, सब जानती हैं, कॉमन सेंस की बात है कि जब दो जबर आता है तो दो जबर के साथ अलिफ वैसे ही लगा होता है, इस अलिफ को पढ़ने में नहीं आता अनलेस कि हम वहां पे वक्फ करें। सिर्फ वो अलिफ जब वक्फ की सूरत में इस्तेमाल होता है, अदरवाइज वो अलिफ जो है वो इग्नोर हो रहा है, आपने समझना कि अलिफ है ही नहीं, ठीक है, वो वैसे ही लगा हुआ इसके साथ। तो हमने ये देखना ता दो जबर के बाद तनवीन के बाद हरफ कौन सा है, फा। तो अब जो फा है वो हरूफ इख्फा के 15 हरूफ में से है या नहीं है। अब आप अपना चार्ट खोलें, आपको पता चलेगा कि फा उसमें है। इसका मतलब है कि जब हमने पढ़ा अमवातन, तन, तन में देखे नून की आवाज आई ना, तन, दो ता दो जबर तन, यहाँ पे ता दो जबर तन है। लेकिन अगर आप वैसे ही पढ़े ता जबर नून तन, फिर भी वही होता है। इसका मतलब है रूल भी सेम होगा नून साकिन का, ता दो जबर तन, ठीक है। अब ये इसकी आवाज फा की वजह से इसकी आवाज को कैसे करेंगे, ता, नून में को आवाज जो नून को है नाक में ले जाएंगे, अमवाता फअहयाकुम, ठीक है। उसके बाद देखिए सुम्मा, यहाँ पे कौन सा रूल आ गया, यहाँ पे गुद्दा आ गया। आपको मैं बता चुकी हूँ कि मीम मुशद्दद और मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद, यानी कि नून के ऊपर भी शद हो, मीम के ऊपर भी शद हो, और उनके ऊपर जब हरकत होगी तो वो सबसे आला जो है ना वो गुन्ना होगा, गुन्ना अकबर, तुम, ठीक है, गुन्ना हो गया ये, तुम। इसको गुन्ना करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि मीम को, क्योंकि आप सब जानती हैं कि तस्दीद वाले हरफ में एक हरफ दो बार होता है, जिसके ऊपर शद होती है उसमें एक हरफ दो बार होता है। अब मीम के ऊपर यहाँ पे शद है, इसका मतलब है इसमें दो मीम है। पहला मीम साकिन है जो कि छुपा हुआ है, साकिन मीम। उस साकिन मीम को जब हमने सा पेश के साथ मिलाया, उस मिलाने में थोड़ी देर उस पोजीशन में रोक ले, अपने होंठों में मीम को दबा ले, तुम देखे, तुम, सा पेश के साथ मीम को मैं मिला रही हूँ ना, तुम, और उसको मैंने उस पोजीशन में थोड़ी देर रोक दिया। उसके बाद आपने मीम जबर माँ पढ़ना है, लेकिन माँ को लंबा नहीं कर देना, लंबा सिर्फ सीम सा के साथ मीम को मिलाने में करना है, लेकिन मीम जबर माँ को लंबा नहीं कर देना। सुम्मा, देखिए जबर को मैंने कितना छोटा रखा है ना, तो इसको कहते हैं गुन्ना, ठीक है। होंठों में आपने मीम की आवाज को थोड़ी देर दबा लिया जब पिछले हरफ से मिलाया। युमीतुकुम, युमी, यू को लंबा नहीं करना क्योंकि या के ऊपर खाली पेश है, लेकिन मी दो हरका जितना लंबा हुआ, क्यों, क्योंकि या मद्दा आ गया, या साकिन से पहले मीम के नीचे जेर है, मीम जेर या मी, युमीतुकुम, ठीक है। सुम्मा, इस फिर वही रूल आ गया, सुम्मा युहयीकुम, युहयीकुम, दो या आगे, एक या के नीचे जेर है और उसके बाद जो या है वो साकिन है। तो उस या साकिन ने क्या किया, अपने पिछले वाले या जेर को दो हरका जितना खींच दिया, यानी वाओ मद्दा या मद्दा का हक अदा किया, काम किया उसने, या मद्दा का, युहयीकुम, ठीक है। सुम्मा इलैहि, अब देखे इलैहि, लाम जबर या, लई, इसको इलाही नहीं पढ़ना, इलाय, इलाय नहीं पढ़ना, इलई, इसको सही तरह से मोड़ना है, इलई, लाम जबर या, लई, या लीन है ये, इलई ही। अब इलई ही, हाज के नीचे सिर्फ जेर है, इसको लंबा नहीं कर देना, इलई ही तुरजाऊन, नहीं, इलई ही तुरजाऊन, ठीक है। हाजिर ही, इसको बहुत छोटा रखना है, तुरजाऊन, तोर को मैंने रा को पुर पढ़ा है, क्यों, क्योंकि तो रोजाउन उससे पहले रा साकिन से पहले हरफ पर पेश है, और मैं बता चुकी हूँ रा जो है वो कंडीशनल हैवी लेटर है। रा कब हैवी पढ़ा जाता है, पुर कब पढ़ा जाता है, जब रा के ऊपर जबर जेर या जबर या पेश हो, ठीक है। और इसी तरह अगर रा साकिन हालत में है तो तब भी सवाल उठता है ना कि रा को फिर कैसे पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे या नहीं। रा अगर साकिन है, रा के ऊपर सुकून या जज्म की अलामत है, तो उससे पिछला हरफ हम देखेंगे, उससे पिछले हरफ के ऊपर जिसके साथ रा को मिला रहे हैं, उसके ऊपर अगर जबर या पेश है तो रा ऑटोमेटिकली पढ़ने में हैवी हो जाएगा, चाहे वो पिछला हरफ बारीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछला हरफ बेशक बारीक है, उसको बारीक ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर जबर या पेश है और उसके साथ रा को मिला रहे हैं तो रा मोटा पड़ा जाएगा। जैसे तोरो, ता बारीक है लेकिन मैंने पढ़ने में रा को मोटा किया क्योंकि ता के ऊपर पेश थी, तो तो मुंह गोल हो गया मेरा, पुर हो गया, तो जून, ठीक है। अगली आयत पे देखें, हुवल्लज़ी, हुवल्ल,
री, री में देखें, अब इसमें कई दफा हम जल्दी करते हैं, हम ऐसे पढ़ जाते हैं हुवल्लज़ी खलक़कुम खलक़ लकुम, जल्दी से आगे जाने की करते हैं, जल्दी नहीं करनी क्योंकि यहाँ पे या साकिन है, या साकिन है, इसका मतलब है कि या मद्दा का काम कर रहा है। ये क्यों? क्योंकि जाल के नीचे जेर है और उसके बाद या साकिन है। तो या साकिन ने क्या किया, अपने पिछले वाला जो जाल जेर था उसको लंबा कर दिया, हुवल्लज़ी, इसको थोड़ा दो हरका खींचेंगे, हुवल्लज़ी खलक़, खलक़, अब देखें खलक़, तीनों के ऊपर जबर है। ये मैं बार बार बताती हूँ, बार बार ये अक्सर गलती होती है। मैं जब भी बताती हूँ कि तीनों के ऊपर एक जैसी हरकत है एक ही वर्ड में, जब तो उसको एक ही जितना लंबा रखेंगे ना, तो कैसे हम कर सकते हैं कि एक हरफ को लंबा कर दें, एक को छोटा कर दें, हालांकि सेम हरकत है। खलक़, तीनों के ऊपर जबर है तो तीनों को एक ही जितना लंबा कर देंगे। और आप जानते हैं हरकत सलासा, खाली जबर खाली जेर खाली पेश कम, पौना सेकंड या उससे कम, ठीक है ना, आधा सेकंड या पौना सेकंड उससे भी कम। देखिए खलक़, देखिए कितना लंबा मैंने किया, मैंने कोई लंबा किया खलक़ ऐसे किया मैंने नहीं, खलक़, तीनों को एक जितना, खलक़ लकुम, लकुम में देखें, लकुम में क्या गलती होती है, लाकुम, लाकुम नहीं कहना, ला का मतलब होता है नहीं, ला में हम इसका मतलब है हमने लाम जबर के साथ अलिफ खुद ही लगा दिया लाम को लंबा करने के लिए, खुद से कोई हरफ भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ल, ल लाम जबर ल, लकुम, ठीक है, ल और ला बहुत फर्क है। खलक़ लकुम, अब ये देखें कुम, कुम का जो मीम है उसके बाद आ गया मीम मुशद्दद, ठीक है। ये रूल जो है ना ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं कि मीम मुशद्दद है तो गुन्ना हो रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम पीछे मिलाएंगे मीम को तो उसको थोड़ी देर होंठों में दबा लेंगे, कुम, थोड़ी देर दबा लें, काफ के साथ मीम को थोड़ी देर दबा लें, उस पोजीशन में रोक लें, कुम, उसके बाद पढ़े मीम जबर अलिफ माँ, कुम माँ, माँ को इसलिए मैंने लंबा किया क्योंकि अलिफ है, मीम जबर अलिफ माँ, अलिफ मद्दा का काम किया, दो हरका जितना खींचा। इसमें जल्दी नहीं करनी, खाला को खाला खाला कुम मा फिल अर्जी, मा फिल अर्जी नहीं, मा फिल अर्दी, ठीक है, फिल अर्दी, अर्दी जमी, अब यहाँ रुक रही हैं तो जमी, आप सब जानती हैं जब हम दो हरका दो जबर पे रुकते हैं तो एक जबर रह जाता है, एक जबर खत्म हो जाता है और एक जबर और अलिफ रह जाता है, ठीक है। तो एक जबर और अलिफ को हम कैसे पढ़ेंगे, अलिफ जबर आइन आ, जमी दो हरका जितना, तुम मस्तवा, यहाँ पे गुन्ना आ गया, तुम, देखिए सा के साथ मीम को मिलाने में मैंने टाइम लगाया, तुम मस्तवा, वाह के ऊपर खड़ा जबर है लेकिन ऊपर मद भी आ गई, खड़ा जबर तो दो हरका जितना खींचते हैं, इस मद की वजह से थोड़ा और ले जाए, दो हरका मजीद खींच लें, चार हरका खींच लें, चार उंगलियां, तुम मस्तवा इलस्समाई, ठीक है, मैं, मैं को लंबा किया। और आपको मैं ये बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसको ई नहीं पढ़ना, ये अलिफ की मद नहीं है, मीम जबर अलिफ माँ की मद है। और ये पिछली रिकॉर्डिंग्स आप बार बार सुनिए, उसमें मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है ना। मैं इलस्समाई फसव्वा, अब ये जो ई है ना, इलस्समाई हमजा जेर ई, इसको भी खींचना नहीं है क्योंकि खाली जेर है, फसव्वाहुन्ना, फसव्वा, फसव, अब देखिए ये वाव के ऊपर शद है और आप जानती हैं शद का मतलब है इसमें दो वाव हैं, पहला वाव साकिन है उसको हमने सीन जबर के साथ मिलाया, फसव, फसव ऐसे मिला दिया, उसके बाद वाव का जो खड़ा जबर है वो पढ़ेंगे, फसव वा, फसव वा, फसव वा, ठीक है। ऐसे नहीं करना फसव वा, फसव वा, शद का हक अदा करना है, ठीक है। फसवाहुन्ना, नून गुन्ना आ गया, हुन्ना, अब देखें पहला नून साकिन है, नून ये जो तशद्दद वाला नून है इसमें पहला नून साकिन है, उसको जब आपने हा पेश के साथ मिलाया तो उस पोजीशन में थोड़ी देर रोक लेना आपने, हुन, हा पेश नून हुन, और जब आप रोक रही हैं तो आपकी जुबान ऊपर टच हो रही है, ये गुन्ना और इख्फा में फर्क है। अगर आप यहाँ टच ना करें तो आप इख्फा कर देंगी हो, ऐसे इख्फा हो जाएगा, अगर आप टच करेंगी तो गुन्ना होगा, ठीक है, गुन्ना में आपकी जुबान टच होगी, इख्फा में टच नहीं होगी। अब देखिए हा पेश नून हुन, इस पोजीशन में थोड़ी देर रोक लें, यानी जुबान आपकी थोड़ी देर वहां पे ऊपर लगी रहे, हुन, ये हो गया
गुन्ना, ठीक है। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, सबअ, सब, बा पे कलकला किया मैंने, क्योंकि बा हरूफे कलकला में से ना 5 हरूफ जो मैंने बताए, कौफ का बा जीम दाल कुतुब जद, जो मैंने 5 हरूफ बताए। तो जब भी इन पे सुकून की अलामत आएगी तो आवाज उछलती है, बाउंस करती है, ऐसे लगता है कि हर्फ हल्का सा अपनी जगह से हिल गया है। सब, सब असमावात। अच्छा, समावात में अक्सर गलती पता क्या होती है? आयतल कुर्सी भी जब हम पढ़ते हैं ना अपनी आप, आयतल कुर्सी भी अपनी ठीक कीजिए, क्योंकि हर नमाज के बाद, हर फर्ज के बाद पढ़नी चाहिए ना आयतल कुर्सी, क्योंकि हमारे नबी की हदीस है ना कि जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा उसके और जन्नत के दरमियान में सिर्फ मौत रह जाती है। तो आयतल कुर्सी का तर्जमा भी याद कीजिए और आयतल कुर्सी को तर्जमे के साथ पढ़ा कीजिए, और सबसे जरूरी बात, उसका तलफ्फुज ठीक होना बहुत जरूरी है। अक्सर मैंने आयतल कुर्सी में जब भी किसी की सुनती हूँ ना, उसमें समावाती का वर्ड अक्सर गलत पढ़ती हैं। कैसे पढ़ती हैं? समावाती, समावाती। आप लोग भी अपनी गलती ठीक कीजिएगा, पढ़ के दीजिएगा कहीं हमसे ये गलती तो नहीं हो रही। समावाती पड़ जाती है, मीम पे जबर और वाव का पूरा खड़ा जबर पड़ जाती है। समावाती, मीम के ऊपर जबर लगा देती हैं। देखिए समावाती, मीम के ऊपर भी खड़ा जबर है, वाव के ऊपर भी खड़ा जबर, कई दफा खड़ा जबर होता है और समटाइम्स खड़ा जबर की बजाय वाव जबर अलिफ वाह होता है, ठीक है। दोनों तरह से समावात इन बनता है, समावात। अब मैं यहाँ रुकी हूँ तो मैंने ता को साकिन कर दिया, दोनों दो दो जेर की हरकत खत्म कर दी। आप सब जानती है जब हम रखते हैं, आरजी सुकून करते हैं, तो उसकी जो आखिरी हरफ की हरकत जो है वो खत्म कर देते हैं। अब आखिरी हरफ की जो ता की हरकत थी, दो जेर थी, उसको मैंने खत्म किया, समावात, ठीक है। अच्छा, ये जो ता पे मैं रुकी हूँ ना, इस पे कलकला नहीं होगा, समावात, कलकला नहीं करना, क्योंकि कलकला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ता जो है वो रूफे कलकला में से नहीं है, तो इसमें जो ता की आवाज होती है ना, वो हल्की सी जैसे मुंह से हवा से निकलती है, समावात, ऐसे। वह हुआ, वह हुआ को वाह हुआ ऐसे नहीं करना। देखिए वाव के ऊपर सिर्फ जबर, हा के ऊपर सिर्फ पेश, वाव के ऊपर सिर्फ जबर। वह हुआ हरकत सलासा में से, तो उसको लंबा नहीं करना। वाह हुआ ऐसे भी नहीं करना, ठीक है। दोनों तीनों को शॉर्ट रखना है। वह हुआ, वह हुआ, वह हुआ बिकुल्ली, बिकुल्ली शैइन अलीम। अब देखें यहाँ पे शैइन, हमजा के नीचे दो जेर आ गई, तनवीन आ गया ना, जो हम नून साकिन और तनवीन के रूल्स कर रहे हैं, तनवीन आ गई, दो जेर आ गई। लेकिन आपने देखना क्या है कि दो जेर के बाद जो हरफ आ रहा है, यहाँ पे हमजा दो जेर के बाद हरफ आ रहा है आइन। अब आप अपना चार्ट खोलें, उस चार्ट में देखिए वो जो 15 हरूफ हैं मैंने आपको बताया रूफे इकफा, उसमें से आइन है या नहीं। अब मैं आपको, आप खोलेंगी चार्ट उसको देखें, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि आइन उनमें नहीं है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे इकफा नहीं होगा। यहाँ पे हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे शई, इसको सीधा ही पढ़ जाएंगे शई इन अलीम, ठीक है। इसमें जिस तरह नॉर्मली हम पढ़ते हैं ना, शई इन अलीम, उसी तरह पढ़ेंगे। ये और रूल है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे ये वाला रूल इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसमें इकफा नहीं होगा, नाक में आवाज नहीं छुड़े छुपेगी, शई ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो आरफ आ रहा है आइन, वो उन 15 हरूफ इकफा में से नहीं है। अच्छा, तो 5 मिनट में ये आयत लंबी है थोड़ी सी, अगर मैं इसको खोल लूंगी तो आपकी अगली क्लास में मिस हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको खत्म करती हूँ इंशाल्लाह ताला। तो कल मैं आपसे ये तीनों आयत जो है ना इंशाल्लाह सुनूंगी रूल्स के साथ, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।